sales executive. She also takes care of the sales part. Okay. Mokshang hai, Himani hai. They are from the client support team. Means if you have anything related to recording and anything, you can connect with these three guys, Sarla, Mokshang, and Himani. And the last is Moshinji. Moshinji is basically from the accounts and admin department. Like if someone is from the business and running a company or something like that, and they want some GST related queries, you can connect with Moshin. आप हमारे टीम से मतलब कि सरला या किसी से भी उनका नंबर आप ले सकते हो. मूविंग अहेड, मैं आपको कुछ गाइडलाइंस शेयर करना चाहूंगा कि ड्यूरिंग दिस 3 months ऑफ सेशन वी वुड अप्रिशिएट कि हम ये सारी गाइडलाइंस जो यहाँ पे मेंशन्ड है और रूल्स है उनको हम फॉलो करें, सो दैट आपके लिए हमारे लिए ये जर्नी बहुत ही स्मूथ और बटरिश रहेगी. ऑलराइट. सो कुछ बेसिक सी गाइडलाइंस है, जैसे कि make sure you join the meeting on time and be prepared for everything. When I say be prepared, that means you should be prepared for the internet, audio things. Make sure you have headphones with you which will help you out to have a good audio experience, because during this 5 days or during this 3 months there will be a lot of exercise and meditations जो कि YSR सर आपके साथ करवाते हैं. और जब आपके पास हैंड्स फ्री होता है तो वो एक्सपीरियंस लेना आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है. ओके, तो मेक श्योर यू बी प्रिपेयर्ड विथ ऑल ऑफ थिंग्स. सेकेंड थिंग, मेक श्योर कि आप एक साइलेंट जगह पे बैठे, सो दैट आप कंप्लीटली फोकस कर सके ये पर्टिकुलर आने वाले प्रोग्राम में. ओके, बी हाइड्रेटेड, कीप वाटर बॉटल विथ यू एंड दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. सेकेंड इज यूज द चैट फंक्शन अप्रोप्रिएटली. ओके, नाउ हम लोग बाकियों की तरह चैट बॉक्स बंद करने में विश्वास नहीं रखते हैं, सो दैट वी कैन कीप दिस सेशन लाइवली. ओके, एक रोबोटिक ना लगे, इसीलिए सर हमेशा चैट बॉक्स ओपन रखते हैं. तो उसको थोड़ा अप्रोप्रिएटली यूज करेंगे. मतलब ऐसे ही मैसेजेस नहीं डालते रहेंगे कि एनीथिंग लाइक कोई भी हम नहीं करेंगे. व्हेन सर आस्क्स यू, यू कैन पुट योर थॉट्स, योर opinions, I mean things in that chat box. You can interact like that. Third is avoid spammers and spamming groups. I know आप में से कोई ऐसा नहीं होगा, but yeah, there have been experiences where people make some groups and all. We have little bit of strict policies for that, where we do not entertain such activities where people make some groups and all and promote their things. Okay, हालांकि आप में से कोई ऐसा नहीं करेगा मुझे पता है, but just guidelines आपको share करने के लिए कर रहा हूँ. After that, चौथा है dress appropriately. So that you can get a feeling that you are actually coming for a learning experience. That is not for us, that is for you. Okay, then do not share the meeting link or password with randomly anyone. This is a paid practitioner workshop. This is not the foundation or something like that. Make sure you keep it to yourself. Okay, important thing, a sixth point, that is calling hours, which is between 11 a.m. to 6 p.m. हम लोग 11 बजे से 6 बजे तक आपके लिए रहेंगे. Where if you have any kind of queries, you can definitely call us and make sure कि आप कोई भी random time पे अगर आप call करेंगे, definitely we will be there to help you out. If at all it will be possible, we will take your call. But normal हमारे calling hours इतने बजे से है 11 से 6. सो मेक श्योर कि आप उसके बीच में अपना टाइम मैनेज करके आप लिख दे. एंड इन केस इफ any one of the team member doesn't receive your call, so don't assume that your call is not been picked up. Just think like that there are huge number of call flow we get every day for n number of inquiries. So what you can do, you can patiently put your message like request on the message or email, and definitely we will give you a call back. All right, so calling hours are like that. After that, for the recording and other inquiries, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे पता है वाईएसआर सर का कंटेंट इतना ब्यूटीफुल और इतना अच्छा होता है कि रिकॉर्डिंग के लिए तो मतलब जितना टाइम आप लोगों के लिए दिया जाए उतना कम होता है. बट मैं आप लोगों को बता दूं कि रिकॉर्डिंग जितनी भी हम लोगों की होगी वो आपको शेयर की जाएगी. बट हियर इज द थिंग, क्योंकि जितना लंबा सेशन होता है उतना ही जूम रिकॉर्डिंग के लिए ज्यादा समय लेता है. ओके, प्रोसेस करने में. तो जैसे कि आज 11 बजे से 4 बजे तक अगर हमारा सेशन होगा,
तो उसकी रिकॉर्डिंग लगभग आपको 7 या 8 PM तक रिसीव हो जाएगी ग्रुप में. ऑल राइट. और कहाँ पे रिसीव होगी, मैं आपको अभी शेयर करके बता देता हूँ. हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर करेंगे. सो मेक श्योर यू डू नॉट फील लाइक के रिकॉर्डिंग शेयर नहीं हुई है. बी अपडेटेड. If you are able to see my WhatsApp screen, just type yes in the chat box so that I can get to know that you are able to see my WhatsApp screen. That's wonderful. All right, thank you. So here's the thing कि हम लोग जो recordings रहेगी वो यहाँ पे जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है हम लोग यहाँ पे आपको शेयर करेंगे. ऑल राइट. सो इट विल बी ओवर हियर. लाइक जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू. मैं आपको अभी बता देता हूँ. जैसे कि मैंने लिंक एंड रिकॉर्डिंग डाला है तो यहाँ पे आपको लिंक आ जाएगी डे एंड पे और आपको क्लिक करना है. एंड इन फ्यूचर ऑल्सो whenever you want to check the recording, just go to the NLP this group description, click the link. There will be a password on the top which will be for every link. It will be the same for every link. Okay, तो make sure कि आप check करें बारीकी से. ओके. सो यहाँ पे सारा का सारा डेटा अवेलेबल होगा. एंड इन केस कभी हमारी रिकॉर्डिंग की लिंक अगर एक्सपायर हो जाती है तो डू नॉट वरी, वापस से हम उसको रीएक्टिवेट कर देंगे. सो डू नॉट हैव अ वरी फॉर दैट. ऑल राइट. सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डिंग के लिए जो नंबर्स आपके पास रहेंगे वो कौन से रहेंगे, दैट आई विल शेयर यू. ओके. वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि विच नंबर डू विच टास्क. ऑल राइट. सो व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने आपको बता दिया है. अब व्हेन आई टोल्ड अबाउट व्हाट्सएप ग्रुप, इट माइट बी पॉसिबल दैट आप में से कई सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड नहीं होंगे. तो मैं 1 मिनट का समय लूंगा एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल शेयर यू अ क्यूआर कोड. ओके. हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है NLP मे MAY 2023 बैच. ऑल राइट. सो आई विल जस्ट टेक 30 seconds ऑफ टाइम. जो लोग स्क्रीन पर है वो लोग क्या करें, ये जैसे कि स्क्रीनशॉट बाजू में दिया हुआ है अपने व्हाट्सएप का कैमरा ऑन कर ले और इसको सिर्फ स्कैन कर ले. और जो लोग अपने मोबाइल से ज्वाइन हुए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट इफ समवन इज प्रेजेंट इन द team member is present, just put the WhatsApp group link. Okay, or they can just write down the number. All right. So I'll just take 10 seconds of your time and आप में से जितने लोग चाहे तो स्कैन कर सकते हैं. ऑब्वियसली काफी सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइंड होंगे इस ग्रुप में. मतलब मोटो ये नहीं है, मोटो यही है कि कोई भी छूट ना जाए क्योंकि काफी सारी न्यूज, सर का कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है, कई बार वो शूट करके अपलोड करते हैं. अतुल अरोरा जी लिख रहे हैं कि कैन यू शेयर दिस लिंक हियर इफ एनीवन इज प्रेजेंट फ्रॉम आवर टीम. अतुल अरोरा जी को लिंक भेज दी जाए. ओके. देखिए लिंक ऑलरेडी चैट में अवेलेबल है आप लोगों के लिए. सो टाइम्स अप. डोंट वरी, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड नहीं हो तो आप एक बार कल आप कर दीजिएगा. ओके. कल या शाम को आप टीम को कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो कर देंगे. एज आई स्टेटेड, रिकॉर्डिंग्स कैसे अपलोड होगी वो मैंने आपको बता दिया. कांटेक्ट नंबर्स आप देख लीजिए एक बार. ये 3 कांटेक्ट नंबर्स है. उन तीनों का क्या क्या काम होगा वो मैं आपको बता देता हूँ. Are you able to hear me? Because someone is writing that the voice is not coming. I think my voice is perfect, guys. Okay, perfect. So ये 3 WhatsApp numbers है. 3 WhatsApp numbers है. Sorry, 3 numbers यहाँ पे screen पे available है. 9328848326. That is for recording purpose. Okay. So if you have anything like मेरा recording चल नहीं रहा है,
पासवर्ड गलत है या एक्सपायर हो गया है या मुझे ये रिकॉर्डिंग इस डेट की रिकॉर्डिंग चाहिए या ये टॉपिक खुल नहीं रहा है, एक्स वाई जी, एनीथिंग रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग queries, just make sure that you contact this number either by WhatsApp or either by call, okay, between 11 to 6. All right, so ये नंबर या तो सरला या तो हिमानी या तो मोक्षांग, ये तीन में से हाँ कोई भी रिसीव करेंगे. उसके बाद है 9328848426. So this is a very important number, ladies and gentlemen, boys and girls. I would request to save it right away. Okay, इसका जो एक कॉन्टैक्ट नंबर का फाइल होता है वो व्हाट्सएप ग्रुप में हम अभी आपको अपलोड कर देंगे, आप वन क्लिक पे आप सेव भी कर सकते हैं. बट दिस व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, बिकॉज दिस गेट्स डायरेक्टली टू Devyani ji, and if you have anything related to the package upgradation query or inquiry about other programs of YSR sir, या कोई XYZ दूसरे कोई प्रोग्राम है जिसके बारे में आपको कहीं बाहर से पता चला है, then make sure you first inquire about it with Devyani ma'am, and then you take your decisions, because you are here for the 3 months and we uh, we हम आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट चाहते हैं. तीसरा नंबर में एक नंबर कम है, ठीक है, तो वो जो राइट नंबर है वो भी चैट बॉक्स में हम डाल देंगे. देखिए डाल दिया है. ये नंबर किस चीज के लिए है? ये नंबर से सिर्फ आपको व्हाट्सएप के मैसेजेस रिसीव होंगे. अगर आप इस पे रिप्लाई करते हो तो इस पे से रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये व्हाट्सएप का एक्सक्लूसिव बिजनेस नंबर है. ओके, तो मेक श्योर कि ये नंबर आप सेव करें. ये नंबर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको रेगुलरली व्हाट्सएप के आपको मैसेजेस मिलेंगे, तो मेक श्योर यू keep a check on that. Okay, so that was this three numbers for you. एंड अब मैं आप लोगों को दो चीजें बताऊंगा, इसके बाद मैं एंड करूंगा एंड वी विल वेलकम और मेंटोर वाइसर सर. ओके, सो हाउ द थिंग्स, लाइक सम ऑफ यू हैव क्वेश्चन दैट हम बोनसेस को कैसे एक्सेस करें, 5 AM क्लब है या ये सारी चीजें वो हम कैसे यूटिलाइज करें. तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, कि हाउ टू यूटिलाइज बोनसेस. तो देखिए बोनसेस के लिए आप लोगों को इस तरीके की एक लिंक शेयर होगी. मैं आपको अभी रियल टाइम में लिंक आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको शेयर की है. ओके, सो ये जो लिंक है, इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो दिस वे अ बोनस पेज विल ओपन. इस तरीके से एक बोनस पेज ओपन होगा. ओके, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन लेडीज एंड जेंटलमैन? परफेक्ट. देखिए चैट बॉक्स में एक लिंक आया हुआ है, आपको वो ब्लू कलर की लिंक पे क्लिक करना है. तो इस तरीके से एक पेज ओपन होगा, जिस पेज में देखिए बोनस 1, XAT 13 days challenge, 5 AM club. After that, accelerated rock solid immunity blueprint. After that, there is eliminate stress and detox your mind. After that, intensive money accelerator program, quantum science of happiness, bonus number 5. Bonus number 6, power of self love. ये 6 बोनसेस की यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल है. एंड व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज, सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाओगे, चाहे मोबाइल से आप लॉग इन कर रहे हो या किसी से. व्हाट यू जस्ट नीड टू डू इज यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ब्यूटीफुल बटन जिसका नाम है ज्वाइन फेसबुक ग्रुप. तो इस तरीके से एक फेसबुक ग्रुप ओपन होगा और आपको यहाँ पे यू जस्ट हैव टू लाइक क्लिक ऑन दैट. जस्ट अ सेकेंड. एंड आपका फेसबुक ओपन होगा. एंड जब आपका फेसबुक ओपन हो जाएगा तो आपको सेंड रिक्वेस्ट करना है. यू हैव टू सेंड रिक्वेस्ट. ओके, जो लोग फेसबुक यूज नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव अ डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर देम. यू हैव टू कनेक्ट दिव्यानी फॉर दैट बाय एंड ऑफ द डे. ओके, सो व्हेन यू विल शेयर, वंस यू योर रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी. हो सके तो अभी रिक्वेस्ट भेज दो, आने वाले 1-2 घंटे के अंदर हम उसको एक्सेप्ट कर देंगे. और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से अब 5 AM क्लब को मुझे फॉर एन एग्जाम्पल एक्सेस करना है. तो मैंने 5 AM क्लब की लिंक पे क्लिक किया एंड डे 1 चैलेंज पे जब मैं क्लिक करूंगा
तो a video will open which will directly take you to the that particular video. Okay, तो ये आ गया YSR सर का वीडियो. तो this is the bonuses. Okay, now it's because we don't have this particular videos are paid videos which used to be taken at the time of COVID. Okay, and it used to be taken in the Facebook. So that's one of the reason that are we have created such links जो कि आपको directly वहां पे आपको ले जाएगा. All right, so this is the thing. And बोनसेस को इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो. बोनसेस आपके पास लाइफ टाइम रहेंगे, ये आपको मैं बता दूं. एंड द लास्ट पार्ट कि आने वाले 5 दिन की वर्कशीट्स. अच्छा, बोनसेस एक्सेस जब आप करोगे तो उसमें एक या दो चैप्टर रिपीटर्स है. सो वो एज इट इज, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज है. जस्ट गो टू द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम शेयरिंग दिस. सेकेंड थिंग, अब जो वर्कशीट्स मिलेगी आपको आने वाले 5 दिन की, वो 5 दिन की वर्कशीट्स आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, कहां पर होगी. तो सबसे पहले हम लोगों ने पांचों की पांच वर्कशीट की पीडीएफ वो ग्रुप में अपलोड कर दी है. वो आप डाउनलोड करें, एक जगह पे रखे, एक फोल्डर में रखे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से. सेकेंड, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक ऑल द प्रिंट्स ऑफ दोज वर्कशीट्स एंड मेक अ बंडल. ओके, एडवांस में आप कर दीजिए. एंड मैं आपको अभी रियल टाइम में एक लिंक चैट बॉक्स में शेयर होगी, दैट वुड बी ऑफ ड्राइव, गूगल ड्राइव. वो गूगल ड्राइव पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारी वर्कशीट्स वहां पे अवेलेबल है. ठीक है. एंड इफ एनीवन फ्रॉम द टीम इज अवेलेबल राइट नाउ, प्लीज शेयर दैट गूगल ड्राइव लिंक इन द चैट बॉक्स. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनएलपी मैनुअल एंड वर्कशीट इज अवेलेबल. सो व्हेन यू विल क्लिक ऑन द लिंक, you will get all those worksheets. And NLP framework की एक एक्सेल भी अवेलेबल होगी. तो मेक श्योर कि you check and you download all those worksheets. Okay, so यहाँ पे सारी worksheets अवेलेबल है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो. लिंक पे क्लिक करिए, डाउनलोड कर दीजिए. ओके, अभी मैं आप लोगों को नहीं कर पाऊंगा कोई भी चीज रिपीट, इसका मैंने रिकॉर्डिंग कर दिया है. सो मेक श्योर आप रिकॉर्डिंग देख ले. And now, as I said, I would just take 15-20 minutes of your time. My time is done, ladies and gentlemen, and now is the time to call upon the screen. Sorry, मैं stage बोलने वाला था, but screen बोलूंगा यहाँ पे क्योंकि ये virtual है. So now is the time to call upon the stage YSR sir. So I would request each and everybody to clap and अपनी screen चालू कर दे. थोड़ा अच्छे से करिए, ठीक है. भले हम सुन नहीं सकते बट हम देख जरूर से सकते हैं. And come on, it is not for us but it is for you, because it's gonna be a beautiful journey. And cheers to initiate this beautiful journey for NLP practitioner workshop. Ladies and gentlemen, I am signing out, and thank you so much for listening me, and see you on the other side. So please welcome YSR sir. YSR sir, over Good to you. morning, everybody. Good morning. Good morning, Ji. I hope everything is clear to you now. And even after that, people will have queries, but the team is there to support you, so no worries. So, ready for day one, everybody? Good to see you all. काफी सारे चेहरे मुझे दिख रहे हैं वॉल पे. किसी भी जर्नी की शुरुआत में it is important that what kind of a belief you carry about the journey. Our commitment comes from our belief. कि जब हम किसी जर्नी पे चल रहे होते हैं तो उसकी शुरुआत में देर इज अ सर्टेन इंटेंसिटी ऑफ बिलीफ वी हैव दैट व्हाट काइंड ऑफ आउटकम, व्हाट इज द सर्टेनिटी ऑफ आउटकम, कि जो आउटकम मुझे मिलने वाला है उसकी क्या सर्टेनिटी है. तो जब बिलीफ की इंटेंसिटी अच्छी होती है तो वो आपके अंदर से पैशन को इग्नाइट करती है, कमिटमेंट को इग्नाइट करती है. ओके, सो you're starting a new journey. So in the start of journey, make sure that you have that belief
that this journey is going to transform you, और आप जो खोजने आए हैं वो आपको यहाँ पे मिले. So on a scale of 1 to 10, let me know what is your level of belief that you are fully committed and you are going to transform yourself from here. Well done. Good. चलिए सीधा let's dive into our first topic. आज के पहले टॉपिक पे आज हम शुरू करते हैं, and that is stages of life. Our first topic is 4 stages of life. हमारी लाइफ स्टेजेस में इवॉल्व होती है, इसकी अलग अलग स्टेजेस आती हैं और हर एक स्टेज में हमारे अलग अलग कोपिंग मैकेनिज्म्स जिंदगी को डील करने के लिए होते हैं. तो देखें जरा, तो देखिए दोस्तों कि बेसिकली क्या है कि ये आप हैं सेंटर में, ये है सिचुएशंस. कभी आपका कोई सपोज बिजनेस में लॉस आ गया, कोई हर्ट हो गई लाइफ में, कोई हार्ट ब्रेक हो गया, कोई एग्जाम आ गया, कोई डिजीज आ गई, कोई डिजीज, कोई एक्सीडेंट, कोई ग्रीफ आ गया, कहीं पे किसी लव्ड वन को लूज कर दिया, कोई ग्रीफ आ गया, या फिर कोई फाइनेंशियल लॉसेस आ गए. तो आपके जीवन में ही अलग अलग सिचुएशंस पैदा होती रहती हैं. एक तो आप सेंटर में हैं और आपके अराउंड आप कंटिन्यूसली अलग अलग सिचुएशंस पैदा करते रहते हैं. अब दीज सिचुएशंस एक्ट ऑन यू, ये सिचुएशंस आप पे एक्ट करती हैं. दिस इज लाइक योर एनवायरनमेंट इज एक्टिंग ऑन यू, राइट? Now, if the environment is acting, you have to respond because you are also a part of the environment as an entity. So you have to respond to these situations and events. So we generate responses. Now, different person in the same situation respond in a different way, right? So how you respond is called your coping mechanisms. Okay? तो हम सबके क्योंकि कॉपिंग मैकेनिज्म्स अलग अलग हैं, इसलिए सिमिलर सिचुएशंस हम लोगों को अलग अलग तरीके से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करवाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट आउटकम्स वी हैव इन आवर लाइफ, डिफरेंट स्टोरीज वी आर लिविंग. अलग कहानी हम बना रहे हैं, अलग कहानी को हम जी रहे हैं. अब ज्यादातर लोगों के ये कॉपिंग मैकेनिज्म्स अगर करेक्ट नहीं है तो दे आर बाउंड टू सफर. Sometime they will suffer with hurt, sometime with guilt, grief, regret, unforgiveness, self-hatred, self-pity, blame, complain, excuses, scarcity, low energy, procrastination, running away from things, F3 mode. So if you don't have right mechanisms to deal with the situations that are arising in your environment because of many factors, you will not have a good experience of life. So it is important to develop right mechanisms. And I think this is the best skill you can develop. That doesn't matter what kind of situation is this, you have a systematic approach to respond to the situations, have right mechanisms to deal with the situation. तो किस प्रकार के हमारे कॉपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि हम लाइफ के किस स्टेज पे इवॉल्व हो रहे हैं.
सो अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि हमारी जिंदगी 4 स्टेजेस में इवॉल्व होकर के चलती है। उससे भी पहले एक और चीज बता दूं कि सिचुएशंस कितने प्रकार की हो सकती है हमारे लाइफ में, व्हाट आर द नेचर ऑफ सिचुएशंस, की हर रोज जो हमारी जिंदगी में घटनाएं दुर्घटनाएं आती हैं उनका नेचर कैसा है देखें। ये समझे न्यूट्रल लाइन है, ये है आपकी एक्सपेक्टेशन की लाइन। ओके, दिस इज योर एक्सपेक्टेशन लाइन, इसको न्यूट्रल कह दें या फिर एक्सपेक्टेशन लाइन बोल दें। ये आपकी स्टैंडर्ड बेसल एक्सपेक्टेशन लाइन है। अब जब आप कुछ भी एंडेवर अपने एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, चाहे वो घर का एनवायरनमेंट है, चाहे वो ऑफिस का एनवायरनमेंट है, चाहे वो और किसी न्यू एनवायरनमेंट में आप हैं, इन एवरी एनवायरनमेंट यू जनरेट सर्टेन बिहेवियर्स एंड यू जनरेट सर्टेन हैबिट्स, यू डू सर्टेन एक्शंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन अराइजेस। सो कभी कभार क्या होगा कि आपको जो सिचुएशंस मिल रही हैं वो एज एक्सपेक्टेड मिल रही हैं, आपको जो आउटकम मिल रहे हैं एज एक्सपेक्टेड मिल रहे हैं, आपको जो लोग मिल रहे हैं एज एक्सपेक्टेड मिल रहे हैं। तो व्हेन थिंग्स हैपन अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन यू आर गुड, ओके, आप सेटिस्फाइड हैं। बट मेनी टाइम्स you will have output that are in this region above expectation। आपको कई बार ऐसे रिजल्ट मिलते हैं जो अबव एक्सपेक्टेशन होते हैं, जो आपने सोचा होता है उससे बेहतर निकलते हैं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल जॉय है कि जब आप जो सोचे उससे बढ़िया होने लगे तो फिर तो पूरा इंसान खुशी खुश है फिर तो कुछ आपकी सिचुएशंस और आउटपुट्स, हालांकि बहुत कम ऐसे आउटपुट होते हैं, ज्यादातर आउटपुट कैसे होते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे नीचे वाले थोड़े से ज्यादा। हम अपने चाहते हैं कि हमारे पति पत्नी ऐसे बिहेव करें, बच्चे ऐसे बिहेव करें, बॉस ऑफिस पॉलिटिक्स ऐसे बिहेव करें, राइट, और जिंदगी इस तरीके से बिहेव चले। तो ज्यादातर आप देखेंगे तो बिलो द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन सिचुएशंस होती हैं। तो इनको आप कहना चाहें तो पॉजिटिव बोल दें, इनको आप कहना चाहें तो नेगेटिव बोल दें। So one is standard basal line, one is above the expectation, one is below the expectation. Now there are two more types of situations that may arise. One that is completely away from your expectation, far away or opposite of your expectation. These are called shocks या फिर shocking situations, right? जहाँ पे शायद आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे थे, सोचे थे 10 लाख का प्रॉफिट होगा, 10 लाख का प्रॉफिट होने के बजाय उल्टा 20 लाख का नुकसान हो गया। कंप्लीटली अपोजिट एंड शॉकिंग चीज हो गई। ठीक है, तो बहुत बार हमारे जीवन में शॉकिंग सिचुएशंस आती हैं जिन्हें आप ट्रोमा कह सकते हैं, अब्यूज कह सकते हैं, एक्सीडेंट्स कह सकते हैं, राइट, मिस हैपनिंग्स कह सकते हैं, ये सब आप इसे कह सकते हैं। लेकिन नेचर बैलेंस करके चलती है। देखिए जिस तरीके से नेचर ने शौक रखे हैं वैसे एक वे अबाउ द एक्सपेक्टेशन भी लाइंस होती हैं जिन्हें आप कहते हैं मिरेकल्स। यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं मिरेकल सिचुएशंस, राइट, कि कुछ ऐसा पॉजिटिव हो गया कि जैसे कि कोई जिंदगी ही बदल गई हो, कुछ मिराकुलस हो गया हो। इनके अलावा और कोई सिचुएशंस नहीं है आपकी लाइफ में, ओनली दीज 5 kind of situations you have, and your expectation line decides that how you will relate with the situation। आपका रिलेशन कैसा बनेगा, योर एक्सपेक्टेशन लाइन विल डिसाइड। ओके, क्लियर। तो अब इन सिचुएशन ज्यादातर देखिए जो अबव एक्सपेक्टेशन है उनको तो डील करना सबको आता ही है। जब रिजल्ट आपसे बेहतर मिले तो फिर तो डील करना आता ही है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा कॉपिंग मैकेनिज्म की जरूरत नहीं, वो लगभग सभी कर लेते हैं। हालांकि ये भी सब नहीं कर पाते। आप देखते हैं बहुत से लोगों को सक्सेस हजम नहीं होती, they cannot digest the success, so many people they don't know how to respond to success। थोड़ा सा फेमस हुए, एक दो पिक्चर आ गई और सडनली एरोगेंट हो गए और ऐसा हो गया कि सब गिरा लिया नीचे। थोड़ा सा पैसा आ गया और न जाने क्या किन आदतों में पड़ गए, ड्रग्स लेने लगे, अलग आदतों में चले गए। कईयों को सक्सेस को भी रिस्पॉन्ड करना नहीं आता है, बट ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। तो ज्यादातर मिरेकल्स भी हम ग्रेसफुली हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर इन एरियाज में, ये जो बिलो एक्सपेक्टेशंस वाले एरियाज हैं, इन एरियाज में हम थोड़ा सा ट्रबल महसूस करते हैं डील करने में, जहाँ से हमारी सफरिंग्स चालू होती हैं। ये एक तरीके से ये जो जोन है ये हमारी सफरिंग के जोन है। सेम पेज लिख दें अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है, तो फिर 4 स्टेजेस समझाता हूँ आपको कि क्या है। सेम पेज है ये, गुड। तो अब देखें जरा कि
What are the four stages of life basing on the coping mechanisms? स्टेजेस क्या है लाइफ की वो देखें जरा। देखिए आपको नोट्स वगैरह समरीज वर्कशीट्स वगैरह मिली हैं, बट एक चीज आप हमेशा ख्याल रखेंगे कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो हमेशा नोट्स जरूर बनाए करें, भले ही आपको लिखे मिलेंगे, क्योंकि बुक रिमेन्स सेम बट आई चेंज। और वो वर्कशीट बनाई तब न जाने में किस स्टेट में था, लेकिन अभी मैं किस स्टेट में हूँ वो अलग हो सकती है, तो हमेशा मेक श्योर करें कि आप नोट्स बनाएं। किसी से रिलेट करने का वेलांकी ना सोचें, जो भी पढ़ रहे हैं बस उसको उस पर ध्यान दें, बस जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, दैट्स इट। ठीक है, जब जहाँ रिलेशन होगा मैं खुद बता दूंगा आपको, आपको कुछ अलग से समझने की जरूरत नहीं है। अब देखें जरा कि व्हाट आर द फोर स्टेजेस, कि ये फोर स्टेजेस क्या हैं उनको जरा समझते हैं। जो पहली स्टेज है हमारी, द फर्स्ट स्टेज इज विक्टिमहुड। नंबर वन स्टेज क्या है? विक्टिमहुड की स्टेज है। जो लोग अपनी जिंदगी में विक्टिमहुड की स्टेज पे हैं, इन लोगों का जो पैराडाइम है, इनका जो माइंडसेट है, वो इस बिलीफ पे चलता है दैट माई लाइफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टेंसेस, माई लाइफ इज एन इफेक्ट एंड समथिंग आउटसाइड मी इज कॉजिंग इट। तो जो भी लोग विक्टिमहुड की स्टेज के अंदर है, ये हमेशा एक ही कॉपिंग मैकेनिज्म को लेके चलते हैं, और वो है ब्लेम का कॉपिंग मैकेनिज्म। So somehow they always believe, they are always in a state that I don't get result because something outside me is responsible for that. For example, मुझे प्रमोशन इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत है, या फिर मुझे प्रमोशन इसलिए नहीं बनता क्योंकि जो मेरा बॉस है वो बायस्ड है, मेरा बिजनेस आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि टीम अच्छी नहीं है, पार्टनर अच्छा नहीं है, मार्केट अच्छा नहीं है, सरकार की पॉलिसीज अच्छी नहीं है, कस्टमर मैच्योर नहीं है। मेरे रिश्तों में टॉक्सिसिटी इसलिए है क्योंकि मेरी सास मुझे नहीं समझती है, पति नहीं समझते हैं, पत्नी नहीं समझती है। मैं अपना पैशन इसलिए फॉलो नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मुझ पे परिवार की जिम्मेदारी है। तो अपने लाइफ रिजल्ट्स के लिए इन्होंने ऐसा फिक्शन तैयार कर रखा है जिसमें दे हैव अ ब्लेम स्टोरी। तो विक्टिमहुड की स्टेज में आप एक ही तरीके से अपने लाइफ रिजल्ट्स को, जो सिचुएशंस पैदा हो रही है उनसे डील जब आप कर रहे हैं, तो आपका एक ही कॉपिंग मैकेनिज्म है, एंड द कॉपिंग मैकेनिज्म इज ऑफ ब्लेम। either you are blaming people, or you are blaming situations, or you are blaming time, luck। जब कोई आदमी नहीं मिल रहा, कोई इंसान नहीं मिल रहा अपने एनवायरनमेंट में, तो आप अननोन चीजों पे जाते हैं, आप समय को ब्लेम कर सकते हैं, आप किस्मत को ब्लेम कर सकते हैं, और कुछ नहीं मिला तो फिर बाद में भगवान को भी ब्लेम कर सकते हैं कि भगवान ही नहीं चाहता कि मैं सफल बनूं, शायद इस ब्रह्मांड की सारी फोर्सेस चाहती हैं कि मैं सफर ही करूं। तो विक्टिमहुड वो स्टेज है जिस स्टेज में आप अपनी सफरिंग के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा के रख रहे हैं, अपनी हेल्थ में, बिजनेस में। हेल्थ के लिए आप हो सकता है जिम्मेदार ठहराते हो कि ये परिवार की जेनेटिक्स ही ऐसी है, हमारे परिवार का तो जीन ही ऐसा है कि जीन के अंदर ये प्रॉब्लम ही होती है। ठीक है, परिवार के अंदर कोई, मेरे परिवार में कोई हेल्थ कॉन्शियस है ही नहीं आसपास, सबके सब इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, ज्यादा खाते हैं, और फिर बाद में वेट लूज करना भी चाहो तो नहीं कर सकते, क्योंकि घर में रोज जब इतना खाना बनेगा तो कैसे लूज करेंगे। जी हमारे तो शहर में जिम ही इतना ज्यादा दूर है, कहाँ से कोई जिम जाकर के एक्सरसाइज कर ले। तो इनके पास में फॉर देयर सफरिंग दे हैव somebody to blame, either people or situations or some unknown forces like god, luck, time।
ईमानदारी से मुझे बताएं, कितने लोग अपने आप को इस स्टेज में देखते हैं? ईमानदार रहिएगा, देखिए। विक्टिमहुड की स्टेज में पावरलेसनेस होती है, हेल्पलेसनेस होती है, काफी सारा एंजाइटी हो सकता है, रिसेंटमेंट हो सकता है, एंशियसनेस, अनसर्टेनिटी, रिसेंटमेंट, लॉस ऑफ पीस, इस प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा दिखती हैं विक्टिमहुड की स्थिति में। विक्टिमहुड की स्थिति में आपको ये नहीं पता कि मुझे क्या पाना है, लेकिन आपको ये पता है कि अभी तक पाया नहीं है। विक्टिमहुड की स्थिति में आपको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, मगर ये पता है कि यहां नहीं रहना। ठीक है। इस स्थिति में आपको हमेशा ये फीलिंग है दैट लाइफ इज हैपनिंग टू मी, जिंदगी मेरे ऊपर हो रही है, यानी कि माई लाइफ इज प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टेंसेज, सिचुएशंस एंड एनवायरमेंट। पहली स्टेज क्लियर है तो सेम पेज लिखें। अब मैं आपको ये भी कह दूं कि अभी हम एक ऑडिट करेंगे जिसमें थोड़ा इसको स्केलिंग करेंगे, राइट? ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर एरिया में 100% विक्टिम है हर समय। हो सकता है कि आप ट्रांजिशन में हो, आज स्टेजेस की ट्रांजिशन में भी आप में से कई लोग हो सकते हैं। तो उस ट्रांजिशन में अगर आप हैं तो वो कैसे पहचाने, हम उसकी ऑडिट कैसे करें, तो वो ऑडिट भी हम करेंगे अभी, तो आपको और क्लैरिटी बनेगी। मगर विक्टिमहुड के सिम्टम्स क्लियर रखें कि ये सिम्टम्स इस स्टेज के हैं, देन एग्जैक्टली हम ऑडिट करके इसको निकालेंगे। अब हो सकता है कि आप लाइफ के अलग अलग एरिया में अलग अलग स्टेजेस में इवॉल्व कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। सो नंबर 1 इज विक्टिमहुड। अब आए नंबर 2 पे। बहुत सारे लोग अपना पूरा जीवन इसी स्टेज में गुजार देते हैं। जी, अब ऊपर वाले ने लिख दिया ऐसी जिंदगी है तो अब वही जिएंगे, अब क्या है। किस्मत ने ही जब ऐसा कर दिया तो अभी क्या कर सकते हैं। ये सब विक्टिमहुड की निशानी है। ठीक है, आगे देखें। तो जब हम विक्टिमहुड से अगर आप इवॉल्व कर गए, इसमें हल्का सा ट्रांजिशन भी रखें। शार्प लाइनिंग नहीं है, एक ट्रांजिशन होता है जब आप यहां से यहां इवॉल्व करते हैं। तो सेकेंड स्टेज होती है अवेयरनेस की स्टेज। सो द सेकेंड स्टेज इज अवेयरनेस। ओके। लगभग 75% पॉपुलेशन विक्टिमहुड की स्टेज में ज्यादातर समय रहती है अपने जीवन के। ठीक है। और आप देखें तो लगभग 15% लोग अवेयरनेस की स्टेज में रहते हैं। अवेयरनेस की स्टेज वो स्टेज है जब आपको ये समझ में आ जाता है that my life is not a product of my circumstances, I can influence my environment. इस स्टेज में आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है that life is not happening to me, life is happening from me. I am the creator of my results. ठीक है। इस स्थिति में आपके अंदर ये विश्वास जागता है कि मैं अपनी स्थितियों को बदल सकता हूं, प्लस आपको ये भी पता चलता है, यू अवेयरनेस दैट व्हाट इज माय रोल इन क्रिएटिंग ट्रबल्स। यहाँ दोनों एस्पेक्ट हैं। यहाँ पे आप सक्सेस में मेरा क्या रोल है उसके बारे में भी अवेयर हैं, दैट आई कैन क्रिएट माय सक्सेस।
So you know your role in creating success, but at the same time you are also aware what is my role in creating problems and suffering in my life. ठीक है. So suppose relationship पे अगर देखें तो